بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی القعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک میں تیل لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز خلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر ہودجوں میں سفر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ قصوہ پر اس وقت ایک پرانا کجاوا تھا جو 4 درہم قیمت کا رہا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہر داری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا: آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا۔ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو طوا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات وہیں قیام فرمایا، صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، باب عبد المناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب السلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی: اے اللہ، تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، بس اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبہ میں اضافہ ہی اضافہ فرما۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے کی۔ پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگایا، باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور ان کو چہرہ مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف چلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، ترجمہ: اے بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعار میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانے کو سعی کرنا کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں میں آپ تیز تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پر چڑھتے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان فرماتے: اے اللہ تعالیٰ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں۔ 8 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ مینا کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ مینا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی، اس نے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں۔
हैं। 8 ज़िलहज्जा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के लिए रवाना हुए। मिना की तरफ रवानगी से पहले इन तमाम लोगों ने एहराम बांध लिए जो पहले एहराम खोल चुके थे। मिना में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाजें अदा फरमाई। रात वहीं गुजारी। वो जुमा की रात थी। सुबह की नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में पढ़ी। सूरज तुलू होने के बाद वहाँ से अराफात की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मेरे लिए ऊँट के बालों का एक कुबा बना दिया जाए। मैदानी अराफात में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुबे में ठहरे यहाँ तक कि ज़वाल का वक्त हो गया। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा को लाने का हुक्म फरमाया। कस्वा पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी के अंदर पहुँचे और ऊँटनी पर बैठे बैठे ही मुसलमानों के सामने खुतबा दिया। इस खुतबा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरी बात सुनो। देखो मैं जानता नहीं कि इस साल के बाद इस जगह पर मैं तुमसे कभी मिलूंगा या नहीं। लोगों सुन लो, तुम्हारे खून यानी तुम्हारी जानें और तुम्हारे अमवाल एक दूसरे पर अपने रब से मिलने तक यानी जिंदगी भर इसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह तुम्हारे लिए ये दिन और ये महीना काबिल एहतराम है। देखो तुम मरने के बाद अनकरीब अपने रब से मिलोगे। वो तुमसे तुम्हारे अमाल के मुतालिक सवाल करेगा और मैं हर अमल के मुतालिक तमाम एहकाम तुम्हें पहुंचा चुका हूँ। बस जिसके पास किसी की अमानत हो उसे चाहिए कि वो उस अमानत को मांगने पर उसी शख्स के हवाले कर दे जिसने अमानतदार समझकर अमानत रखवाई थी। देखो हर किस्म का सूद जो किसी का किसी के जिम्मे था खत्म कर दिया गया। अलबत्ता तुम्हारा असल माल तुम्हारे लिए हलाल है। ना तुम ज्यादती करोगे और ना तुम्हारे साथ ज्यादती की जाएगी। अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है कि आप कोई सूद जायज नहीं और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सारा सूद साकित कर दिया गया। अब उसका इंतकाम नहीं लिया जाएगा और सबसे पहले जो कत्ल का बदला मैं खत्म करता हूँ वो इब्ने रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का कत्ल है। और इब्ने रबिया ने बनु लैस में दूध पिया था। हजील ने उसे कत्ल कर दिया था। बस ये पहला कत्ल है जिससे मैं माफी की इब्तिदा कर रहा हूँ। लोगों गौर से सुनो, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि अब इस सरजमीन में कभी उसकी इबादत की जाएगी, लेकिन अगर उसकी अतात करोगे तो वो तुम्हारे उन गुनाहों से जिन्हें तुम मामूली समझते हो राजी हो जाएगा। इसलिए तुम लोग दीन के मामले में शैतान से बचते और डरते रहो। लोगों गौर से सुनो, तुम्हारी औरतों पर तुम्हारा हक है और तुम पर उन औरतों का हक है। औरतों के साथ हुस्न सलूक और भलाई करते रहो क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं। तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर हासिल किया है। लोगों मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तो हर हुक्म पहुंचा दिया और तुम्हारे अंदर वो चीज छोड़ी है कि अगर उसे मजबूती से पकड़े रखा तो कभी गुमराह न होगे। और वो खुली हुई चीज है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों मेरी बात सुनकर गौर करो, खूब समझ लो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। लिहाजा किसी भी आदमी के लिए अपनी भाई की कोई चीज बिला इजाजत हलाल नहीं। हाँ मगर उस वक्त जब वो दिल की खुशी से कोई चीज खुद दे दे। बस तुम लोग अपने आप पर किसी भी हालत में जुल्म मत करना। लोगों बताओ मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया। लोगों ने जवाब में कहा कि यकीनन। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ रुख अनवर किया और शहादत की उंगली उठाकर फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहदु अल्लाहुम्मा अशहदु अल्लाहुम्मा अशहदु। ऐ अल्लाह आप गवाह रहिएगा, ऐ अल्लाह आप गवाह रहिएगा, ऐ अल्लाह आप गवाह रहिएगा। खुतबे से फारिग होकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को अजान का हुक्म दिया। अजान के बाद ज़ोहर की तकबीर कही गई और नमाज अदा की गई। फिर असर की नमाज के लिए तकबीर कही गई और नमाज अदा की गई, यानी दोनों नमाजें एक साथ अदा की गई। दोनों नमाजों के लिए अजान एक कही गई और तकबीरें अलग अलग हुई। अराफात में एक जमात खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। उन्होंने पूछा, हज किस तरह किया जाता है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज दरअसल वकूफ अराफात का नाम है, यानी अराफात में ठहरना हज करना। अराफात का पूरा मैदान वकूफ की जगह है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशअरुल हराम यानी मुज़दलिफा के लिए रवाना हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को अपने पीछे बिठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इत्मीनान से चलने का हुक्म फरमाते रहे। इस तरह मुज़दलिफा पहुँचे। यहाँ मगरिब और ईशा की नमाजें एक साथ अदा फरमाई। ये दोनों नमाजें ईशा के वक्त पढ़ी गई। औरतों और बच्चों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया
फरमाया कि आधी रात के लिए 1 घंटे बाद ही मुजदलिफा से मना रवाना हो जाएं ताकि वहाँ हजूम होने से पहले शैतान को कंकरियां मार सके। फजर का वक्त हुआ तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदलिफा में मुंह अंधेरे ही नमाज पढ़ाई। फिर सूरज निकलने से पहले मुजदलिफा से मीना की तरफ रवाना हुए। जमराह उकबा बड़े शैतान पर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कंकरियां मारी। शैतानों को कंकरियां मारने के अमल को रमी कहते हैं। ये कंकरियां मुजदलिफा से चुन ली जाती हैं। हर कंकरी मारते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर फरमाते रहे। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार थे। हजरत बिलाल और हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। हजरत बिलाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की लगाम पकड़ रखी थी और हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कपड़े से साया किए हुए थे। उस मौका पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुतबा दिया। उसमें एक दूसरे के माल और इज्जत को हराम करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलहज्जा की 10वीं तारीख को हुर्मत का दिन करार दिया और फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत और नामूस तुम्हारे दरमियान एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह ये दिन तुम्हारे लिए हुर्मत का दिन है, जिस तरह इस शहर की हुर्मत है और जिस तरह इस महीने की हुर्मत है। ये अल्फाज कई बार फरमाए। आखिर में दरियाफ्त फरमाया, ऐ लोगो, क्या मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया? लोगों ने इकरार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं तुम में से जो मौजूद है वो गायब तक ये तबलीग पहुंचा दे। मेरे बाद तुम कुफर की तारीकियों में न लौट जाना, हालांकि आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ये भी फरमाया कि वो मुझसे हज के मनासिक अरकान सीख लो, क्योंकि मुमकिन है इस साल के बाद मुझे हज का मौका न मिले। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस हज के सिर्फ 3 माह बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में कुर्बानी की जगह तशरीफ लाए और 63 ऊँट कुर्बान फरमाए। ये सब जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा ही से लाए थे और अपने दस्ते मुबारक से ज़िबह फरमाए। गोया अपनी उम्र के हर साल के बदले एक जानवर कुर्बान फरमाया। कुर्बानी के गोश्त में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ गोश्त पकाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया। बाकी ऊँटों को ज़िबह करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म दिया। कुल 100 ऊँट थे। इस तरह 37 ऊँट हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़िबह फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जानवरों का गोश्त और दूसरी चीजें लोगों में तकसीम करने का हुक्म फरमाया। मीना का तमाम मकाम कुर्बानी करने की जगह है। इस जगह किसी भी हिस्से में जानवर कुर्बान किया जा सकता है। कुर्बानी से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाया। सर मुबारक के बाल सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में तकसीम किए गए। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, सर मंडवाने वालों की मगफिरत फरमा। सर मंडवाने के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुशबू लगाई। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जाने के लिए सवारी पर तशरीफ फरमा हुए। मक्का पहुंचकर ज़ोहर से पहले तवाफ किया। ये तवाफ अज़ाफ़ा था जो हज में फर्ज है, इसके बगैर हज नहीं होता। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम के कुएं से जमजम नोश फरमाया। कुछ पानी पिया, कुछ पानी अपने सर मुबारक पर भी छिड़का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मीना तशरीफ ले गए। वहीं ज़ोहर की नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में 3 दिन ठहरे। 3 दिन तक रमी जुमेरात की, यानी शैतान को कंकरियां मारी। हर शैतान को 7 कंकरियां मारी। मीना के क़याम के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म फरमाया, लोगों, अपने वतन लौटने से पहले बैतुल्लाह का तवाफ कर लो। इसे तवाफ़े विदा कहते हैं, यानी रुखसत होते वक्त का तवाफ, और ये हर हाजी पर वाजिब है।